Hello, welcome students. Good morning. Today we will start with lesson number 35. In this lesson, we are going to learn how to find the power dissipated in a resistor or in a circuit, and some applications we will be doing in this. So let us start with the first question, which is very important. Many things are based on what we are going to learn in this. The question is to show that the heat produced in a resistor R in which current I is flowing for a time t is I square R into T. Other formula is H is equal to V square divided by R into T. The derivation is really very simple. Here we have considered a conductor and A and B. They are connected to a battery of voltage V. First of all, let us imagine in our mind that capital N number of electrons, they move from end A to B in a time t. So capital N number of electrons are moving from A to B in a time t. Now, when one electron moves from A to B through a potential difference V, there is a loss of potential energy. The loss of potential energy, students, you know from electrostatics, is E multiplied by V. So we may ask ourselves, if capital N number of electrons are going to move from A to B in a time t, what will be the total loss in the potential energy? Well, it will be N multiplied by the loss in potential energy due to the movement of one electron through a potential difference V. Now, in current electricity, the first question that we learned was to define current. So current is Q divided by T. The charge on one electron is E, and if there are N electrons, then total charge will be this divided by time. So N into E represents the total charge. This is the total time. From here, the value of N can be computed in terms of current and time and electronic charge. तो N की वैल्यू देखिए सिंपल तरीके से I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई हो गई. अब ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपीयर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. So the resistor, the conductor, it gets heated. So the above loss in potential energy gets converted into heat energy, and the total loss was N into E into V. We simply substitute the value of N, which is I into T divided by E. This E will get cancelled, and we get a generalized formula that heat produced is VIT. Now we can obtain different forms in this. अगर हम V equal to IR लगा दें यहाँ पे, तो we get the formula H is equal to I square R into T. और अगर इसी फार्मूले में करंट की वैल्यू V by R लगा दें, तो we get the formula V square divided by R into T. May I inform you students कि जब भी किसी सर्किट में करंट कांस्टेंट रहेगा तो वी विल यूज द फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी, और जब कभी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तब हम फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी. सो दीज वेर द टू फार्मूलेज. ए वेरी सिंपल थिंग, इफ आई पुट टी इक्वल टू 1, then the energy produced in a unit time that we call as power. So students, we can learn two more formulas. The formula for power can be written as I square into R, and the other formula can be V square divided by R. So it was so simple. So we sum up with this, and we have learnt in this कि अगर किसी कंडक्टर में करंट I फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड I स्क्वायर RT होती है, और अगर किसी कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस रख दें
तब भी उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, गिवन बाय द फार्मूला v² डिवाइडेड बाय r इंटू टी। Let us now start with the next question. This question was asked in the exam for 3 marks. He says, find the power dissipated when resistors are connected in series and the power dissipated when they are connected in parallel. So let me explain the situation first to you. The question says कि एक resistor R1 है, when connected to a voltage source V, it dissipates a power P1. एक और resistor है R2, when connected to a voltage source V, it dissipates power P2. Now we are going to learn कि इस रेजिस्टेंस को पावर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपने सुना था पावर होता है v² डिवाइडेड बाई r, तो नेचुरली r विल बी v² डिवाइडेड बाई p, तो दैट्स द फार्मूला। सो r1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए v² अपॉन p1, और r2 की वैल्यू लिख सकते हैं v² डिवाइडेड बाई p2. So now we have expressed the resistance in terms of power P1 and P2. अब power dissipated in a series circuit will be V² upon R. R कौन सा? Equivalent resistance. और जब resistors series में connected होते हैं तो they simply get added. तो वो हो गया R1 plus R2. R1 और R2 की वैल्यू वहाँ से देख के लिखी। अब हमने v² को कॉमन लिया और वो जो v² है वो ऊपर वाले v² से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अब हमने 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ हमने LCM ले लिया P1 इंटू P2 और ऊपर आ गया P1 प्लस P2, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो पावर डेसिपेटेड इन ए सीरीज सर्किट इज P1 इंटू P2 divided by P1 plus P2. So simple. Let us now begin with the second part in this to find the power dissipated when they are connected in parallel. ये वही रजिस्टर R1 था and R2 वही है, तो उसको हमने वहाँ से देख के लिख दिया था v² डिवाइडेड बाई P1 और v² डिवाइडेड बाई P2। तो जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर डेसिपेटेड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज अगेन फार्मूला वही है v² अपॉन r, लेकिन r कौन सा? इक्विवेलेंट, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब हमने ये R1 प्लस R2 ऊपर लिख लिया और जहाँ जहाँ R1 एंड R2 है उनकी वैल्यूज़ लगाई, तो v² अपॉन P1 इंटू v² अपॉन P2 एंड देन यहाँ पे v² अपॉन P1 प्लस v² अपॉन P2। आप देखें एक v² तो वैसे ही कैंसिल हो गया और यहाँ से आप v² कॉमन ले सकते हो, वो इससे कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर टर्म चली जाएगी P1 इंटू P2 और यहाँ बचेगी 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2। अब हम LCM ले लेते हैं, तो यहाँ P1 इंटू P2 आ गया एंड ऊपर हो जाएगा P1 प्लस P2। ये P1 इंटू P2 देखिए इससे कैंसिल हो जाता है एंड द पावर डेसिपेटेड इन ए पैरेलल सर्किट इज P1 प्लस P2। Now let's do the next question. Question ये है कि find the power consumed in the circuit. देखिए रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो वी आर लर्निंग कि जब भी पावर कंज्यूम निकालनी हो, टोटल पावर कंज्यूम निकालनी हो, तो फिर हमें सभी रजिस्टर्स को कंसीडर करना है, एक्सटर्नल को भी और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी सर्किटरी प्रॉब्लम करने के तरीके आपको ऑलरेडी आते हैं। पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट्स जहां वोल्टेज सोर्स होता है उसको ए बी कह देते हैं। उसके बाद हम
जंक्शन पॉइंट्स मार्क करते हैं। अगर ये पॉइंट ए है तो देखिए ये पॉइंट भी ए कहलाएगा, ये पॉइंट भी ए होगा। इसी तरीके से अगर ये बी है तो इट इज कनेक्टेड बाय ए वायर, ये भी बी होगा, वो भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा। स्टूडेंट्स आप याद रखें वो लाइन कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए वायर विल हैव द सेम मीनिंग। अब इस पॉइंट को तो बी नहीं कहा जा सकता, लेट अस मार्क ए न्यू पॉइंट कॉल्ड सी। अब हमने इस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करना है रजिस्टर बाय रजिस्टर। सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स मार्क कर लिए ए एंड बी। आई आस्क ये वाला रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है? यू से अक्रॉस ए एंड बी। फिर यहां देखें एक रजिस्टर है अक्रॉस ए सी और एक और रजिस्टर है अक्रॉस ए सी। तो अक्रॉस ए सी एक रेजिस्टेंस आर ये ड्रॉ किया, एक दूसरा रेजिस्टेंस यहां ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से ये वाला रजिस्टर यहाँ मैंने ड्रॉ किया बिटवीन सी एंड बी और ये वाला फिर ड्रॉ किया बिटवीन सी एंड बी। स्टूडेंट्स आप देखें हाउ आर दीज टू रजिस्टर्स कनेक्टेड? दीज टू आर इन पैरेलल, और जब पैरेलल में रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है, इसका भी R/2 हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। नाउ विल टेक ए स्टेप फर्दर एंड वी फाइंड कि जो सेंट्रल ब्रांच थी उसमें दो रजिस्टर्स थे R/2 के, और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए इसकी वैल्यू R होगी। यहाँ आते हैं, ये R हो गया, ये भी R है, ये भी R है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो होते तो R/2 होता, तीन हैं तो R/3 हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर अक्रॉस ए बी अगर देखें तो R/3 है। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस और भी है जिसकी वैल्यू स्मॉल r है। तो आई आस्क कि भाई R इक्विवेलेंट कितना है? R इक्विवेलेंट विल बी ये वाला रेजिस्टेंस प्लस दिस। देखिए करंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहीं पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये आ गया R/3 प्लस R, टोटल वोल्टेज E है। अब हमने सिंपली फार्मूला लगा दिया कि जो पावर डेसिपेटेड है वो होता V² अपॉन R, तो E² अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट लिख डाला। सो दैट इज इट। Now let us begin with one more question. This question says, find the power consumed by the 4 ohm resistor. स्टूडेंट्स इस टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके क्लोज पाथ वगैरह लेके और इक्वेशंस लिखी। चलिए आज फिर एक छोटे से क्वेश्चन में अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मान लिया ये I1 है और आप कहते हैं I2 ऊपर चला गया, तो नेचुरली यहाँ पे करंट आएगा I1 माइनस I2। हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। कितने वेरिएबल्स हैं? क्लियरली दो ही तो वेरिएबल्स हैं, I1 एंड I2। तो सिंपली हमको दो क्लोज पाथ लेने हैं। एक हम ऊपर लेते हैं A F E B A, तो यहां से हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी सर्किट लाइन है और देखें हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो रही है, इसका मतलब -12। डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस नेगेटिव। यहां आ जाइए, करंट की डायरेक्शन सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, 4 टाइम्स ऑफ I1 हो गया। उसके बाद लेट अस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम एक और क्लोज पाथ लेना चाहेंगे, वो है B E D C B। तो इसमें यहां से चले, आप देखें कि डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन ये है, करंट की ऑपोजिट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, प्लस 4 टाइम्स ऑफ I1 हो गया। इधर आ जाइए, वी आर गोइंग दिस वे, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं,
वोल्टेज इंक्रीज कर रही है तो ये +6 लिखा जाएगा, एंड देन करंट इधर से आ रहा है और सर्किट लाइन की ये डायरेक्शन है, तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव I इंटू I1 माइनस I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर कहेंगे कि जो पावर डेसिपेटेड है इन द 4 ohm रजिस्टर इज सिंपली I स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू हमने निकाल ली, मान लिया A था, मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दैट गिव्स अस द पावर डेसिपेटेड इन द 4 ohm रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये रिलेटिवली बहुत इजी पॉइंट था, तो सिंपली 2 ही फार्मूले हैं, लेकिन ये हमें याद रखना है कि I स्क्वायर R तब लगाएं जब करंट कांस्टेंट हो, V स्क्वायर बाई R तब लगाएं जब वोल्टेज कांस्टेंट हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।